Good morning, friends. Today we are going to learn an interesting story. The name of the story is An Encounter of a Special Kind. It is a story written by Tapan Mukherjee, and it is a real life story which had happened in the writer's age when he was young boy and he rescued a small langur from the attack of a dominant male langur. So let's begin the lesson. Okay, we will start the lesson now. Here is the lesson. First we will start with the warming up session. Warming up session is very important for everyone's lives, but before starting our warming up lesson, we will going to understand the meaning of encounter, the meaning of the lesson. An encounter of a special kind. Encounter you had heard so many time in the मूवीज. जसं आपण ऐकलेलं आहे, आज याचं इन्काउंटर करायचं आहे, त्याचं इन्काउंटर करायचं आहे, या क्रिमिनलचं इन्काउंटर करायचं आहे. तर हे तुम्ही ऐकलेलं आहे आणि पुलिस लोक ह्या शब्दांचा वापर करतात. पुलिस लोग इसका उपयोग करते हैं किसी का इन्काउंटर करने के लिए. इन्काउंटर म्हणजे एक प्रकारची चकमक, म्हणजे दोन गटामध्ये झालेलं एक युद्ध छोटंसं, त्याला म्हणते इन्काउंटर, चकमक. ठीक आहे. तर इन्काउंटर ऑफ ए स्पेशल काइंड, एक हा विशिष्ट प्रकारचं हे इन्काउंटर होतं. हे मानवाचं इन्काउंटर नव्हतं, तर प्राण्यांचं इन्काउंटर होतं. त्याच्यामधून कशा पद्धतीने लेखकाने एका छोट्या माकडाची सुटका केली त्याच्यावर आधारित ह्या पूर्ण पाठ आहे. ठीक आहे. तर सुरुवातीला आपण वॉर्मिंग अप सेशन पाहू. वॉर्मिंग अप सेशन इज व्हेरी इम्पॉर्टंट फॉर ऑल द स्टुडंट्स टू अंडरस्टँड द lesson properly. Okay, there are some question as you are in home now, so you are not going to discuss on this question, but you can give me your responses in a written format in one or two line. What does, okay, we will start. So you understand, you have to write one or two line on the question and send it to me. What do you see in the picture? You can see there is one picture. In this picture, what you are seeing that one girl is taking one pot in her hand, and in that pot one dog is a small dog, puppy was there. And what she was trying to do, she was trying to take the boy in the tub from the water. She is in neck deep water on the river, and she is trying to rescue the puppy. She is trying to save the puppy from the water. What do you see in the picture? You can see in the picture a small girl carrying a puppy on the tub in which the puppy is standing. Second question, what do you think the girl is trying to do? Why the girl is, I believe the girl is trying to rescue the puppy. Why? Because if she will not help him, he will drown also. He can drown. है. If you were in the place of girl, what would you do? जब तुम्हें, अगर आप उसके जगह पे होते, उस लड़की के जगह पर, तो आप क्या करते? तो बेशक आप भी वही करते जो लड़की कर रही है कि नहीं. तो you can write the answer or you can discuss the answer in the way that if I was in the place of a girl, I can also do the same thing which the girl in the picture is doing. Okay, you can write the answer in the way. Fourth question, do you think she will become successful in her mission? मतलब वो अपने जो भी काम कर रही है उसमें कामयाब होगी, ऐसे आपको लगता है क्या? तो ज़रूर होगी, because she is doing a good work, and any good work has blessed by the Almighty, so she will definitely become successful in her work. Okay, so do you understand the warming up section? Now we will see the second option exercise. Here they had given 4 pictures. Okay, you can see here 4 pictures are there. Okay, B, C and D. 4
उन्होंने पिक्चर दी है। इसमें आप क्या देख सकते हैं कि एक लड़का है जिसके आजू बाजू में किताब बिखरी हुई है, दूसरा लड़का किताब पढ़ रहा है लेकिन उसका मूड कुछ उखड़ा उखड़ा नज़र आ रहा है। तीसरे इसमें हम देख सकते हैं एक घर है जहाँ पर कुछ पेड़ है। चौथे इसमें एक लड़का पढ़ रहा है, ऐसे हमें नज़र आ रहा है। तो इसमें हमको लिखना है कि ABCD करके ऑप्शन जो दिए उसको लिखना है। जैसे आपका फेवरेट पास, जैसे और लग्जरियस बंगलो, बंगलो कौन सा है ये, तो इसको हम यहाँ पे लिखेंगे। सीमा फेवरेट पास टाइम कौन सा है, पढ़ना। व्हाट इज़ कमोशन, गोंधड़ म्हणजे काय होते, कमोशन मतलब गोंधड़, तो ये कमोशन, ये जो है गोंधड़। इंग्रॉस इन द बुक, इंग्रॉस इन द बुक, ये ठीक है। और ये जो है फेवरेट पास टाइम्स, तो ये, तो इंग्रॉस इन द बुक मतलब आप पूरी तरह से वो बुक में खो गए हैं, तो उसको कहते हैं इंग्रॉस। इन दिस वे यू हैव टू कंप्लीट दिस एक्टिविटी। ओके, नाउ वी विल गोइंग टू स्टार्ट द स्टोरी. So we will take the story in parts so that you can easily understand the story in a better way. Okay, an encounter of a special kind. Okay, encounter of a special kind. So my father, means the writer father, was a medical professional working for a private company in Raniganj in West Bengal. The officers of the company were housed in individual bungalows inside a large campus. Our house was in a corner of the campus. The officers club was adjacent to the boundary wall of our garden. Means इसमें क्या बता रहे हैं कि राइटर के जो फादर हैं वो मेडिकल प्रोफेशनल में काम करते, मेडिकल प्रोफेशनल के तौर पर एक प्राइवेट कंपनी में वो काम करते हैं। मेडिकल प्रोफेशनल यानी मार्केटिंग का काम हो सकता है या दवाई की कंपनी में काम हो सकता है, तो उस प्रकार से वो काम करते हैं। और कहाँ है वो जगह, वो जगह है रानीगंज इन बंगाल, वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल पश्चिम बंगाल एक राज्य है। इट इज़ वन स्टेट वेयर रानीगंज इज़ अ प्लेस वेयर दे आर वर्किंग हिज फादर, राइटर्स फादर इज़ वर्किंग इन रानीगंज। ठीक है, तो ये पहला प्रश्न है आपके लिए कि वेयर डज राइटर फादर वर्क, तो ये आपको प्रश्न के उत्तर लिखना है। ठीक है, दूसरा, द ऑफिसर्स ऑफ द कंपनी वेयर हाउस इन इंडिविजुअल बंगलोज इनसाइड द कैंपस, और उस कंपनी ने अपने कर्मचारियों को बंगलो दिए थे, रहने के लिए घर दिए थे, और उनका बहुत बड़ा कैंपस था। कैंपस यानी बहुत बड़ा एरिया था जहाँ पर उस कंपनी के लोगों को रिहायशी मकान दिए गए थे, बड़े बड़े घर दिए थे। और हाउस इन द कॉर्नर ऑफ द कैंपस, और जो लेखक का घर था वो कैंपस के जो मतलब जो उनकी कॉलोनी थी उसके एकदम कॉर्नर में था। एंड द ऑफिसर क्लब वॉज एडजेसेंट टू द बाउंड्री वॉल ऑफ द गार्डन, मतलब जो ऑफिसर क्लब था, जो मतलब क्लब मतलब जहाँ पर हम हमारा खाली वक्त बिताते हैं, कुछ खेल खेलते हैं, तो बिल्कुल उनके बाउंड्री वॉल, द ऑफिसर क्लब वॉज एडजेसेंट टू द बाउंड्री वॉल ऑफ आवर गार्डन। इनका जो गार्डन था घर का, जो बंगलों में गार्डन होता है उसके एकदम समीप था। एडजेसेंट मतलब पास, एडजेसेंट मतलब क्या होता है, पास था। तो समझ में आया। तो अभी हम इंग्लिश में देखते हैं इसका अर्थ क्या होता है। तो हिज राइटर्स फादर वाज अ मेडिकल प्रोफेशनल एंड ही इज़ वर्किंग इन अ प्राइवेट कंपनी as a officer in that particular company. The company is in Raniganj in West Bengal. The officer of the company was provided bungalows by the company, and it was a very large campus. In that campus, the house of the writer is in the corner of the campus, and it is near the clubhouse. Okay, it is near the clubhouse. We will see the further part. The compound was luxurious with green grass, colorful flowers and host of tall majestic trees. The compound was luxurious मतलब आरामदायक। मतलब जो कंपाउंड था वो काफ़ी बड़ा था, जिसमें काफ़ी हरे घास थे, कलरफुल फ्लावर्स थे, रंग बिरंगे फूल थे, और मैजेस्टिक ट्रीज, बड़े बड़े पेड़ भी वहाँ पर थे। द सीजनल वेजिटेबल इन द किचन गार्डन्स ऑफ द हाउस होल्ड एंड सिग्निफिकेंट ट्रीज कॉन्स्टेंटली अट्रैक्ट द स्क्वेरल्स and many species of birds. A group of langurs had even made their den in an avasta tree nearby. मतलब
जो माहौल था एकदम निसर्ग रम्य माहौल था, जहाँ पर पूरी हरियाली बिछी हुई थी, जिस वजह से वहाँ पर सीजनेबल वेजिटेबल्स भी काफ़ी प्रमाण में वो अपने किचन गार्डन यानी अपने घर में जो आंगन है उसमें बनाए, अपने सब्जी भाजी सब्जी के लिए जो हमने छोटा सा एक गार्डन तैयार करते हैं उसे किचन गार्डन करते हैं। मराठी में इसको परस बाग भी कहते हैं। परस बाग एक छोटी सी बाग जो हम सब्जियों के लिए तैयार करते हैं हमारे घर के आंगन में ही। और वो काफ़ी जो भी स्क्वेरल वगैरह है, स्क्वेरल मतलब खारुताई वगैरह, उसको अट्रैक्ट करती है। मैनी स्पीसीज ऑफ बर्ड, आपने देखा है कि बड़े बड़े पेड़ है तो अलग अलग स्पीसीज यानी प्रजाति, अलग अलग प्रजाति के पक्षी वहाँ पर आते हैं। अगर पेड़ रहेंगे तो पक्षी आएंगे, पेड़ नहीं रहेंगे तो पक्षी आएंगे क्या? तो वहाँ पर अलग अलग प्रजाति के पक्षी आते थे। और वो सब वहाँ पर एक, और जो लंगूर थे, जो बंदर थे, वो भी वहाँ पर रहते थे। और उन्होंने अपना घर, डेन यानी घर, अश्वत्थ यहाँ पे पीपल के पेड़ पर उन्होंने अपना घर बना के रखा था, जो उनके लेखक के घर के एकदम करीब था। दे ऑल हैव बिकम द पार्ट एंड पार्सल ऑफ आवर एग्जिस्टेंस एंड डेली लाइफ। और वो सब लोग मतलब जो स्क्वेरल्स है, लंगूर्स है और जो भी पक्षी है, वो उनके जीवन का एक पार्ट एंड पार्सल यानी अविभाज्य हिस्सा, मतलब बहुत ज़रूरी हिस्सा उनके जीवन का वो बन चुके थे। और वो उनके जीवन का रोज़मर्रा का हिस्सा वो बन चुके थे। So in this, the writer try to explain that in his bungalow there is a small garden where they grow vegetables in their garden, and constantly because of the magnificent trees, so many birds, squirrels and langurs were attracted towards the trees. And one of the langurs group had also made their den in the अश्वत्थ पिंपळाच्या झाडावर त्यांनी एक छोटंसं त्यांचं घरसुद्धा बनवलं होतं. अँड दे बिकम द पार्ट अँड पार्सल, मीन्स दे बिकम द इम्पॉर्टंट पार्ट ऑफ देअर daily life. Okay, do you understand the first paragraph? Now we will see the second paragraph. A small incident on a Saturday afternoon left a profound effect on me and unfolded before my eyes a whole new dimension of the wonders of God creation. मतलब एक छोटे से हादसे ने लेखक के जो सैटरडे को हुआ था दोपहर के समय, उनके जीवन में, उनके मन में एक प्रोफाउंड इफेक्ट, गहरा असर उसके दिमाग में छोड़ दिया था. एंड इट अनफोल्डेड, मतलब उसके कारण बहुत से चीज़ें रिवील्ड यानी ओपन होना, खुली होना. बिफोर माई आइज, किसके आंखों के सामने? लेखक की आंखों से. ए होल न्यू डायमेंशन, मतलब जीवन को देखने का एक नया नज़रिया. किसके बारे में? जो गॉड का आश्चर्य है उसके बारे में, मतलब भगवान ने बनाई हुई इस प्रकृति के तरफ लेखक का देखने का नज़रिया क्या हो गया? इस घटना के कारण बदल गया. किस घटना के कारण? अभी हम वो आगे पढ़ने वाले हैं. तो एक स्मॉल इंसिडेंट हैपन इन राइटर्स life, and because of that incident the whole dimension, the nature of seeing the God's creation is changed in writer's life. Okay, it was a few days into the puja vacation. Just like for any other child, the holidays provided an opportunity for me to become engrossed in the various magazines and storybooks published specially for children and festive season. As you all know, in Kolkata, in West Bengal, the biggest festival is Durga Puja. Like now in our Maharashtra, we can see the Ganpati festival is going on, and Ganpati festival is also the biggest festival. But in Kolkata, दुर्गा पूजा इज़ द बिगेस्ट फेस्टिवल. और दुर्गा पूजा में वहाँ पर स्कूल को, जैसे हमको दिवाली को 10-15 दिन की छुट्टी होती है, वहाँ पर दुर्गा पूजा के समय छुट्टी होती है. और बहुत सा समय फिर वो हॉलीडे यानी जो छुट्टी का समय वो लेखक को मिला था. और टू बिकम इनग्रॉस यानी एक आधी चीज़ में लीन हो जाना, मतलब उसमें पूरी तरह से
बिज़ी हो जाना इन वेरियस मैगज़ीन। हमको जब खाली वक्त मिलता है तो हम क्या करते हैं, बहुत से मैगज़ीन पढ़ते हैं, स्टोरी बुक्स पढ़ते हैं, स्पेशली इन द फेस्टिव सीज़न। जो भी त्योहारों का सीज़न है, जब हमें छुट्टी होती है तो हम खुद को इस प्रकार के इंटरेस्टिंग चीज़ों में खुद को क्या कर देते हैं, एंगेज कर देते हैं कि नहीं। आगे देखते हैं, आफ्टर ए हार्टी लंच, हार्टी यानी पेट भर, बहुत ज़्यादा, हार्टी यानी पेट भर, सफिशिएंट, ठीक है। यहाँ पर दिया है इसके अर्थ इंग्लिश में, पेट भर, पेट भर, ठीक है। तो आफ्टर ए हार्टी लंच माई पेरेंट्स एंड यंगर सिस्टर ले डाउन फॉर एन आफ्टरनून नैप एंड आई सेटल डाउन विथ ए स्टोरी बुक। मतलब दोपहर का पेट भर खाना होने के बाद, लंच है ना दोपहर का खाना, लेखक के पेरेंट्स मतलब माता पिता और उसकी जो छोटी बहन थी, वो थोड़े देर के लिए दोपहर की नींद, नैप यानी वाम खुशी मराठी में बोलते हैं, मतलब दोपहर में थोड़ा देर हम झुक्की मारते हैं ना, तो उसको कहते हैं। एंड लेखक उस समय लेखक सोए नहीं, तो वो अपने जो स्टोरी बुक थे उसमें जाकर पढ़ने लगे। द क्वाइट आफ्टरनून प्रेजेंट द परफेक्ट बैकग्राउंड फॉर रीडिंग एंड एडवेंचर स्टोरी। और वो जो दोपहर थी वो काफ़ी शांत थी, क्योंकि सब लोग सोए थे, डिस्टर्ब करने वाला कोई नहीं था, और एक एक्चुअल परफेक्ट मोमेंट था टू रीड द एडवेंचर बुक। व्हेन यू आर where you will get interest in reading something, when you will be perfectly alone in some room and you will find that there is no disturbance for you, so that time you can definitely concentrate on any book। उसी प्रकार से लेखक खुद concentrate कर पा रहे थे। The silence occasionally broken by the sound of family snoring, the intermittent chirping of house sparrow, the harsh cawing of crow, the shrill call of a kite flying high above the ground। लेकिन बीच बीच में क्या हो रहा था, ओकेशनली यानी बीच बीच में जो आवाज़ था, जिसके कारण, किसका आवाज़ था, फैमिली स्नोरिंग, मतलब जो हम सोते समय थोड़ा सा जो अपन स्नोर करते हैं, स्नोर है ना, जो हम ये क्या बोलते हैं उसको, सोते समय मराठी मध्ये त्याला घोरणे म्हणतात। ओ इंटरमिडिएट यानी बीच बीच में, चिरपिंग और हार्स पैरो, मतलब जो चिमनी, जो चिड़िया थे उसका जो चिवचिवाट था, उसके कारण द हार्स काउइंग ऑफ क्रो, जो कौवे का ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना था, और जो काइट फ्लाइंग थी, जो पक्षी उड़ रहे थे ऊपर, उनका कर्कश आवाज़, जिसके कारण उसका जो कंसंट्रेशन था लेखक का, वो क्या होता रहा था, डिस्टर्ब हो रहा था। ओकेशनली ब्रोकन, ब्रोकन मतलब टूट रहा था कंसंट्रेशन। एंड हाई मिनट्स टिक बाय, आई बिकम डीपली ऑब्जर्व इन द बुक। और थोड़े देर के बाद वो पूरी तरह से वो बुक में, जो बुक पढ़ रहे थे उसमें पूरी तरह से खो गए थे। तो व्हाट वी आर गोइंग टू सी इन इंग्लिश in this paragraph, that after a hearty lunch, the writer's parents and her younger sister had go for sleep, in afternoon sleep, to take a small nap, and at that time writer find a good time to read the book because there is no type of disturbance there, but occasionally the sound of snoring of her parents, the intermittent chirping of house, and the harsh cawing of crow disturb him, but after some time he find himself deeply absorbed in the book। Okay, after that suddenly I heard a group of street dog barking furiously and the distance। पर अचानक उसको कुत्तों के जो ग्रुप था उसका भौंकने का, फ्यूरियसली मतलब ज़ोर ज़ोर से, गुस्से से भौंकने का आवाज़ आ रहा था थोड़े दूर से। आई चोज टू इग्नोर द कमोशन, उन्होंने सोचा कि मैं इसे इग्नोर कर देता हूँ, मतलब इसकी तरफ ध्यान नहीं देता। ये कमोशन यानी नॉइज़, जो आवाज़ है, जो वहाँ का अपन मराठीत गोंगाट म्हणतो है कि नहीं, तो गोंधड़, उसको छोड़ना चाहते थे। थिंकिंग दैट द पैक ऑफ डॉग्स माइट हैव कॉर्नर ए हैप्लेस पिग, उसने सोचा हो सकता है ये जो कुत्तों का ग्रुप है, इन्होंने जो पिग है, हैप्लेस यानी जो कम नसीबी, मतलब अनफॉर्चुनेट, मतलब दुर्दैवी जो पिग है, उसको उन्होंने घेर लिया होगा, जिस वजह से सब उस पर अभी टूट पड़ने हैं, इस वजह से वो कुत्ते भौंक रहे। बट सून द बार्किंग बिकम लाउडर, पर जल्दी से ही वो जो आवाज़ थी भौंकने की वो बढ़ गई थी, एंड मोर अग्रेसिव, और उसमें ज़्यादा ही क्या आ गई थी, अग्रेसिवनेस, तेजीनेस आ गई थी, मतलब भौंकने का जो उनका जो ये था, स्पीड था, वो बढ़ गया था।
एंड एन अलार्म ऑफ कॉइंग फ्लॉक ऑफ क्रोस, और उसी के साथ ज़ोर ज़ोर से कौवों का भी चिल्लाना एडेड टू द कैकोफनी। कैकोफनी माने जो कर्कश आवाज़ थी, ज़ोरदार आवाज़ थी, वो बढ़ चुकी थी। आई ऑल्सो हर्ड द डिस्टर्बेंस अप्रोचिंग क्लोजर, और लेखक को पता चल रहा था कि ये जो डिस्टर्बेंस है वो उसके पास ही आ रहा है, मतलब ये आवाज़ उसके पास ही हो रही है। इधर हम देख रहे हैं कि एक लंगूर है जो अपने माँ के साथ जा रहा है। क्यूरियोसिटी गॉट बेटर ऑन मी, मतलब ओवर पावर्ड, मतलब जो उत्सुकता थी वो उस पर हावी हो गई। और लिविंग द बुक असाइड आई रश टू द वरांडा सो सी व्हाट वाज गोइंग, मतलब फिर वो उस पर हावी हो गई और आवाज़ की जो तीव्रता थी, और उसने वो बुक वहीं पे साइड में रख दी और वो वरांडा में भाग कर गया क्या हुआ वो देखने के लिए। ठीक है, आपको समझ में ये स्टोरी? तो यहाँ तक आज हम फर्स्ट पार्ट देखेंगे। नेक्स्ट पार्ट, लेकिन ये पार्ट आपको रीड करना है। इसमें दिए हुए ये जो प्रश्न है, व्हाट वाज द प्रोफेशनल ऑफ द राइटर, यहाँ पर दिया है। डिस्क्राइब द कैंपस, कैंपस को डिस्क्राइब मैंने वर्णन करना है कैंपस का, कि कैंपस कैसा था, तो इसमें दिया हुआ है। ठीक है, ये प्रश्न आपको छुड़ाना है। आपको रीड करके आप जितना छुड़ाएंगे आपके लिए उतना ही आसान हो जाएगा। ठीक है, तो अगले पार्ट में हम इसके आगे का भाग देखेंगे। थैंक यू।